भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 61 से 72 तक। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्पर विषयहि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयापुंसः संविस्तेषु उपजायते संगास् जायते कामः क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेष विमुक्तस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मविषयैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिर्स्योपजायते प्रसञ्चेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभाव्यतः शान्तिर्शान्त्स्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चिरता तदस्य हरति प्रज्ञावायुनावमिवाम्भसि तस्मादेस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्या जागृति संयमी यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपुर्मान्मचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सवेस शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्य सर्वानुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहनिकारः स शान्तिमधिगच्छति अश ब्राह्मी स्थिते पार्थ नैना प्राप्य विमुह्यति ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्या योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम Bhagavad Gita, Chapter 2, verses from 61 to 72. Therefore, having controlled all the senses and concentrating his mind, he should sit for meditation, devoting himself heart and soul to me. For he whose senses are under his control is known to have a stable mind. The man dwelling on sense objects develops attachment for them, from attachment springs up desire, and from desire unfulfilled ensues anger. From anger arises delusion, from delusion confusion of memory, from confusion of memory loss of reason, and from loss of reason one goes to complete ruin. But the self-controlled sadhaka, while enjoying the various sense objects through his senses, which are disciplined and free from likes and dislikes, attains placidity of mind. With the attainment of such placidity of mind, all his sorrows come to an end, and the intellect of such a person of tranquil mind, soon withdrawing itself from all sides, becomes firmly established in God. He who has not controlled his mind and senses can have no determinate intellect nor contemplation. Without contemplation, he can have no peace. And how can there be happiness for one lacking peace of mind? As the wind carries away a boat upon the waters, even so, of the senses moving among sense objects, the one to which the mind is attached takes away his discrimination. Therefore, Arjuna, he whose senses are completely restrained from their objects, is said to have a stable mind. That which is night to all beings, in that state of divine knowledge and supreme bliss the God-realized yogi keeps awake, and that, the ever-changing, transient worldly happiness, in which all beings keep awake, is night to the seer. As the waters of different rivers enter the ocean, which, though full on all sides, remains undisturbed, likewise, he in whom all enjoyments merge themselves without causing disturbance attains peace, not he who hankers after such enjoyments. He who has given up all desires, and moves free from attachment, egoism and thirst for enjoyment attains peace. Arjuna, such is the state of the God-realized soul. Having reached this state, he overcomes delusion. And established in this state, even at the last moment, he attains Brahmic bliss. Thus, in the Upanishad sung by the Lord, the science of Brahma, the scripture of yoga, the dialogue between Sri Krishna and Arjuna, ends the second chapter entitled Sankhya Yoga, the yoga of knowledge. इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं, उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अत्यंत मुभाव उत्पन्न हो जाता है, मुभाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है, स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से ये पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने विषय की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्नचित वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भलीभांति स्थिर हो जाती है। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। इसलिए है महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई है, उसी की बुद्धि स्थिर है। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है।
जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। हे अर्जुन, ये ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।